کو بتائیں کہ لیاری میں عمارت منہدم ہونے کے بعد حکومت سندھ کے بڑے فیصلے۔ کراچی میں 51 انتہائی مخدوش عمارتیں فوری گرانے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی کی نگرانی میں کمیٹی کل رپورٹ پیش کرے گی۔ 588 عمارتوں کی تفصیلات 2 ہفتوں میں پیش کی جائیں گی۔ منہدم عمارت کے جام بحق افراد کے لیے 10-10 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ ڈی جی ایس پی سی اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سی مقرر۔ صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، سعید غنی اور ضیاء الانجار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ لیاری میں بلڈنگ گرنے پر حکومت کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں شہر کی مخدوش عمارتوں کی انہدامی کا فیصلہ۔ ڈی جی ایس پی سی اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لیاری کی منہدم عمارت کے متاثرین کی مدد۔ 2020 سے لیاری میں مقرر ہونے والے ایس بی سی اے کے افسران کے خلاف تحقیقات پر اتفاق۔ اجلاس کے بعد 3 صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، سعید غنی اور ضیاء الانجار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شرجیل انعام میمن نے لیاری کی عمارت کے متاثرین کے لیے معاوضوں کا اعلان کیا۔ بولے 27 افراد کے لواحقین کو فی کس 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جو بھی اس پورے واقعے میں جن کی کوتاہی ہے، جنہوں نے اپنے فرائض جو ان کی ڈیوٹی کے حساب سے نہیں سر انجام دیے یا انجام دیے بھی صحیح تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے بتایا کہ کمشنر کراچی کی قیادت میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پہلی کمیٹی 48 گھنٹے میں لیاری کی عمارت کے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری کمیٹی 588 مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کے بارے میں 2 ہفتوں میں رپورٹ دے گی۔ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے یونٹس ان عمارتوں میں ہیں، ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے بتایا کہ غفلت برتنے اور مجرمانہ کردار ادا کرنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، گرفتار بھی کیا جائے گا۔ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اس کو ڈٹرمینیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ، اور کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں، اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزراء کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون تبدیل ہوگا۔ نئے قانون میں بلڈرز کے خلاف سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین رانا جہاں زیب کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ نہ چھت رہی نہ زمین، جائیں تو جائیں کہاں؟ آگرہ تاج کالونی میں سیل کی گئی عمارت کے مکین بلڈر اور بلڈنگ کنٹرول حکام کی ملی بھگت سے سڑک پر آ گئے۔ بے یار و مددگار مکین کہتے ہیں انتظامیہ کے متبادل جگہ فراہم کرنے اور داد رسی کے دعوے جھوٹے نکلے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احسن عباسی۔ ایس بی سی اے کی نااہلی، بلڈر مافیا کی بے حسی، لیاری آگرہ تاج کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ آگرہ تاج میں دراڑیں آنے کے بعد سے عمارت کو ہنگامی بنیادوں پر راتوں رات خالی تو کروا لیا گیا، متبادل جگہ کی فراہمی اور رقم دلوانے کے وعدے وفا نہ ہونے پر رہائشی سڑک پر آ گئے۔ مکین کہتے ہیں زندگی بھر کی جمع پونجی سے اہل خانہ کے لیے چھت کا انتظام کیا، لاکھوں روپے رجسٹری میں لگے۔ عمارت کی تعمیر کے وقت بلڈنگ کنٹرول کی ٹیکنیکل ٹیم نے کلیئر کیا، جس کے بعد خرید و فروخت شروع کی۔ یہ بول کے گئے تھے کہ ہم ابھی سیل لگا کے جا رہے ہیں، پیر والے دن ہم بلڈر کو بھی لے کر آئیں گے، سب کچھ لے کر آئیں گے، آپ کو جگہ بھی فراہم کریں گے اور آپ کو پیسے بھی دلائیں گے۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہے۔ فیملی میری آدھی رشتہ داروں کی، آدھے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی۔ ابھی بارش بھی ہونے والی ہے، ابھی بتائیں میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے، میں کہاں رکھوں اپنی فیملی کو۔ رہائشیوں نے سٹی 21 کو بتایا کہ بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیا زیور اور دیگر قیمتی سامان گھر میں موجود ہے۔ عمارت سیل کر کے انتظامیہ غائب ہو گئی، ہمارا دیا ہوا ووٹ بھی رنگ نہ لایا۔ بلڈر یہاں موجود نہیں ہے، بلڈر کی موجودگی ہو، کوئی چیز توڑ پھوڑ ہو، جو ہم غریبوں کا جو معاملہ پیسہ لگا ہوا ہے، ساری زندگی کی کمائی کا اثاثہ ہے، وہ ہم کو کون دے گا نکال کے؟
मुतबादिल जगह के तौर पे केएमसी स्कूल में डालने, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, छोटे बच्चों का साथ है, मौसम आपके सामने है, हम कहाँ जाए, किससे पूछे जाकर। इलाका मकीन कहते हैं अपने घर में रहने वाले आज दरबदर हैं। SBCA को लगाम डालने वाला कोई नहीं। आगराताज की हर दूसरी गली में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियारी में इमारत ज़मीन बोझ होने का दिल खराश वाक़या, 27 अफराद के ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद का कहना है कि किसी की गफलत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली श्याम सुंदर बोले, हमारे लिए सबसे पहले इंसानी जान कीमती है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। साहिबा गिर गया, ख्वाब बिखर गए। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान रकम। हादसे की नजर होने वालों की रसूमात का सिलसिला जारी। हिंदू कम्युनिटी हॉल में रस्म तिरिया का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रुकन सिंध असम्बली श्याम सुंदर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने कहा कि हादसे में किसी की गफलत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत तमाम मुतासिरीन के लिए कोशिश कर रही है। हम जो जाने चलेंगे उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी। देखें जी, जहाँ पर किसी की जो भी गफलत होगी, किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, उससे जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और उसकी पनिशमेंट भी होगी। रुकन सिंध असम्बली श्याम सुंदर बोले, हमारे लिए हर चीज़ से पहले इंसानी जान है। मैं समझता हूँ इस मौके पे पूरी हमारी आज जो हिंदू कम्युनिटी मैशरी बिरादरी के जो 20 लोगों के जो एक अफसोसनाक हमारी हिंदू कम्युनिटी में ये वाक़या हुआ है। दूसरे जो 7 अफराद वो भी हमारे भाई हैं, लासी बलोच हैं। तो इसमें कोई सी मज़हब का नहीं, ये इंसान है। इंसान पहले है, मज़हब बाद में है, हिंदू हो मुस्लिम कोई हो। अरकान असम्बली का कहना है कि लियारी में दूसरी इमारत के सील होने पर मुतासिरीन का एहतजाज दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियारी के गुंजानाबाद वाले इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ होने का वाक़या। SBCA हुकाम ने मुतासरा इमारत के अतराफ मौजूद 3 इमारतों को सील कर दिया, जबकि SBCA टीम ने मुतासरा इमारत के अकब में कायम दूसरी 5 मंजिला इमारत को मुनहदम करना शुरू कर दिया। मुतासरीन का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कुछ रोज़ कबल जो है वो लियारी आर्ट चौक बगदादी का ये मकाम है जहां एक 5 मंजिला इमारत के जो है वो ज़मीन बोझ होने का मामला था। मजमूई तौर पर 27 अफराद जो है वो खातून समेत अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। मुतअद्दिद अफराद को जो है हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद SBCA हुकाम जो है वो मुतहरिक नज़र आई। बेशतर इमारतों को जो है मकदूश करार दे दिया गया था। उसी के अगले रोज़ जो है वो लियारी का वही मकाम है आर्ट चौक का, उसके पिछली जानिब जो है वो 3 इमारतों को जो है वो मकदूश करार देते हुए जो है वो सील कर दिया गया है। जबकि एक इमारत जो बताया जाता है यहाँ का मुतासरीन का कि जो एक इमारत है 6 मंजिला, उसको जो है वो महदम किया जा रहा है। एतराफ़ की जो इमारतें हैं तमाम तर लोगों को जो है वो खाली कर दिया गया है। बताया जाता है कि कल दोबारा जो है वो महदब इमारत है उसको मज़ीद जो है वो महदम किया जाएगा और साथ में जो एतराफ़ में सील किया है उसको भी किया जाएगा और दीगर पर भी जो है वो मखदूश करा दी गई हैं इमारतें। साथ ही आज बहुत बड़ा हुक्मनामा भी जो है वो जारी किया गया है वज़ीर बल्दियात की जानिब से। साबका DG इसाक खुरो को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। नए बताया जाता है कि भुट्टो जो हैं इस नाम से उनकी तारुफ है, उनको जो है वो नया DG मुकर्रर कर दिया गया है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी। जमात दहम जनरल समातो गोयाई से महरूम तलबा के नताइज का ऐलान। अलबदर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की सना अदरीस ने पहली, मामा इंडिको स्कूल सिस्टम की बुशरा इमरान ने दूसरी और हानिया यूसुफ ने पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप रेगुलर में 10,222 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 91.94% रहा, जिनमें 2,804 तलबा और 7,418 तालिबात शामिल थी। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 91
99.94% रहा। कामयाब उम्मीदवारों में 108 A1 ग्रेड, 971 A ग्रेड, 2157 B ग्रेड, 2471 C ग्रेड, 863 D ग्रेड और 29 ने E ग्रेड हासिल किया। इम्तिहानात में प्राइवेट जनरल ग्रुप में 4573 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। मज़ीद बरां समात व गोयाई से महरूम 124 खुसूसी तलबा व तालिबात में से अब्सा स्कूल फॉर दी डेफ कुरंगी के सैयद सैफ अली शाह ने पहली, जबकि हमीदा हसन अंसारी ने दूसरी और ज़ियाउर रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कराची की एक ऐसी मार्केट जहां रात का सस्ता फल फरोख्त होता है। महंगाई के सताए अवाम रात को फल ख़रीदने के लिए सदर की इस मार्केट का रुख करते हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची के एक ऐसे फ्रूट मार्केट में मौजूद हैं जहां पर रात गए लोग फल की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर रात के वक्त फल कुछ सस्ती कीमत में बिकता है। क्या वाकई ऐसा है? अगर आप देखें तो आपको यहाँ जा बजा बहुत सारे ठेले नज़र आएंगे और यहाँ पर कुछ ख़रीदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तसव्वुर किया जाता है इस मार्केट को लेकर कि अगर आप रात को देर से आए तो यहाँ पर फल कुछ सस्ता बिकता है, ऐसा है नहीं? जी बिल्कुल है। मैं भी इसलिए अपनी शॉप बंद करके तो जो ना वो इसलिए मैं आया हूँ कि मुझे जो सस्ता मिला है। अब आप देखें ना कि 150 रुपये किलो मुझे मिला है, मतलब रिजनेबल है। 3 किलो आराम से मैं ले सकता हूँ। अच्छा, वैसे नॉर्मली कितने का ये आम किलो मिलता है? अगर आप अपने एरिया से ख़रीदते तो कितने तक का मिलता है? मुझे तकरीबन 250 से 200 रुपये पड़ता है। 200-250 रुपये पड़ता है। यहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ती है? फिक्स रेट? नहीं, फिक्स रेट है और वो हमने ले लिया उससे। अच्छा जी। बिल्कुल जी, ख़रीदार हमारे साथ मौजूद थे। मेरे कैमरामैन फराज आपको दिखा सकें, इस वक्त भी यहाँ पर कोई आम ख़रीदने में मसरूफ़ है और कोई जो मौसमी फल हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ है। आड़ू हैं, इसके साथ साथ लीची है और दीगर इस तरह की चीज़ें हैं जो मौसमी फल हैं, लोग शौक़ से खाते हैं। महंगाई के इस दौर में फल ख़रीदना लोगों की पहुँच से दूर है, तो हर कोई चाहता है कि रात के इस पहर हम आएँ। 11-12 बजे के बाद लोग यहाँ का रुख करते हैं और सस्ते दामों फलों की तलाश करते हैं कि कौन से दाम कम दाम के जो फल हैं उन्हें लोग ख़रीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं और लोग मनपसंद फ्रूट ख़रीदने में मशगूल हैं। जी।